Namaskar. In today's lecture of mechanics, I'll discuss about another application of calculus of variation technique to find the geodesics. And now in this lecture, we'll discuss the geodesics on cone and on on a cylinder. In my previous lecture, I told you that if we want to find the shortest path between the 2 points on a plane, then by simple geometry or by calculus of variation technique, we can find mathematically that it is a straight line. But if the 2 points are lying on a curved surface, then the shortest path between the 2 points is called geodesics. In the previous lecture, we discussed the geodesics on spheres, and we found that these are great circles. Great circles means the circles which were passing through the center of the sphere. In this lecture, we'll discuss what are the geodesics on a cone when your curved surface is a cone. Then, as we all know that whenever we have to consider a cone, then again we have to consider the spherical polar coordinates. The reason being, you can see in this picture that a cone is naturally a part of this surface, a spherical surface. The only difference is that in a cone, theta is fixed. Like as in sphere r was fixed, in cone theta is fixed. So line element will remain the same, only the condition will be imposed that theta is fixed here. So we'll write the line elements. We'll see the line elements were dx was corresponding to dr, dy was corresponding to r sin theta, d phi, and dz was corresponding to r d theta. But in this case, because our theta is constant, for a cone, theta is constant. This implies d theta is 0. And you write theta to be equal to a. ठीक, तो जो लाइन एलिमेंट्स हैं, लाइन एलिमेंट्स आर dr, r sin a, d phi and 0, because your d theta is constant. So in this case, what will be our distance function? Distance function defined on fx as it is defined is ds, and this ds will be square root of dx square. In Cartesian coordinates we write like this. You may also write it directly. And now it is integral dr square plus r square sin square a d phi square root. This is our line integral. So what is our integrand? I'll make my integrand with the help of this. Either I take dr to be common or I take d phi to be common. दोनों ही हम कर सकते हैं. तो फिर से मैंने जैसे पहले बताया था, हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि हम दोनों में से किसको बनाएं, किसको हम कॉमन लें, किसके रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रल करेंगे. तो हमारे पास जो d आया, d ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू डी आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए डी फाई स्क्वायर. लिख के देख लेते हैं फिर भी इसको कि हम किसके रिस्पेक्ट में करेंगे. देखिए, दिस इज इंटीग्रल. इसको हमने लिखा सपोज 1 प्लस ये जो साइन स्क्वायर है ये तो कांस्टेंट है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा. साइन स्क्वायर ए
आर स्क्वायर, ये बना डी फाई डी आर स्क्वायर, और यहाँ आया डी आर। या हम कैसे लिख सकते हैं इसको, हम इसको लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ डी आर डी फाई स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ए आर स्क्वायर, और यहाँ लिखा मैंने डी फाई। ठीक है, दोनों में से हम एक चूज करेंगे, 1 प्लस साइन स्क्वायर ए आर स्क्वायर, और ये बना फाई डॉट स्क्वायर, या फिर आर डॉट स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ए आर स्क्वायर डी फाई। आप हमेशा एक बात का याद रखिए कि जिसका डेरिवेटिव है, जैसे ये डेरिवेटिव है, तो ये खुद ना प्रेजेंट हो, ऐसा फंक्शन उठाओ तो वो इजी होता है। जैसे यहाँ फाई का डेरिवेटिव है लेकिन फाई खुद से प्रेजेंट नहीं है, तो हमारे लिए ये सिंपल पड़ेगा। ठीक है, तो हम इसको डिस्कार्ड कर देंगे और इसको रिटेन करेंगे। यहाँ से हमारा f क्या बना, f पहली बात f इज ए फंक्शन ऑफ, यहाँ से आया r एंड फाई डॉट, इसका फंक्शन आ रहा है ये, एंड दिस इज 1 प्लस साइन स्क्वायर ए आर स्क्वायर फाई डॉट स्क्वायर, ये आ रहा है f। तो कैलकुलस ऑफ वेरिएशन टेक्निक लगा रहे हैं हम, तो आयलर लेग्रांजी इक्वेशन यूज करेंगे। क्या बनी, ये आपका फंक्शन है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे हम विद रिस्पेक्ट टू फाई, क्योंकि फाई डॉट, फाई के रिस्पेक्ट में, सॉरी आर के रिस्पेक्ट में आपको इंटीग्रल लेना है, तो फाई के रिस्पेक्ट में इक्वेशन बनाएंगे माइनस डी डी आर ऑफ डेल्टा एफ डेल्टा फाई डॉट इज इक्वल टू 0, बट f is not a function of phi, so delta f delta phi will be 0। यहाँ से 2 implies delta f delta phi dot is constant। ये आपकी सिंपल इक्वेशन बन गई, आयलर लेग्रांजी इक्वेशन। 1 से हम इसे सॉल्व कर लेंगे, डेल्टा डेल्टा फाई डॉट रूट 1 प्लस साइन स्क्वायर ए आर स्क्वायर फाई डॉट स्क्वायर इज कांस्टेंट। ठीक है, अब आप इसको अपने आप सॉल्व करिएगा, मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हैं आप, एंड सॉल्विंग you will get r is equal to some constant sec phi sin theta plus b, ये इस फॉर्म में आएगा, which is the equation of a spiral। ठीक है, तो ये हमारे क्या है, these are geodesics on a cone। Thus geodesics on a cone are spirals। ठीक है, इसी तरह से अब हम देखेंगे what are the geodesics on a cylinder। So for a geodesic on a cylinder we should know what are the line elements for a cylinder। पहले तो आप एक बहुत सिंपल सा ये वाला पार्ट देखिए, ये वाला पार्ट, इस वाले पार्ट में हम जब सिलेंडर कंसीडर करते हैं और जब स्फीयर कंसीडर करते हैं तो थोड़ा सा डिफरेंस होता है। सिलेंडर जब स्फीयर कंसीडर करते हैं तो हमारे पास 3 जो उसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं, जो 3 कोऑर्डिनेट्स पर वो बेस्ड होता है, वो कोऑर्डिनेट्स होते हैं आर फाई और जेड, सॉरी आर फाई और थीटा, ये 3 कोऑर्डिनेट्स होते हैं। ठीक, जिसमें थीटा पोलर एंगल होता है, फाई एजिमुथ एंगल होता है, और आर एक रेडियल डिस्टेंस होता है। ये जो आर है ये अलोंग द रेडियस ऑफ स्फीयर होता है। यहाँ पे एक अंतर हो जाता है जब हम सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स लेते हैं, यहाँ पर जो हमारा आर है वो आर अभी भी रेडियस है, लेकिन अब वो किसका रेडियस है, रेडियस ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ दैट सिलेंडर। तो हमारा आर, हम पहले क्या करते थे, ये अगर हमारा पी है तो हम इसको आर मानते थे, इसको हम आर मानते थे। अब हमारा ये आर नहीं है,
हमने जब इसका परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया तो ये जो परपेंडिकुलर के फुट को हम मिलाते थे n को, ये जो दूरी है ये हम मान लेंगे r। ठीक है, तो ये r और इस r में डिफरेंस है, दोनों r में डिफरेंस है। ये r है रेडियस ऑफ द सिलेंडर और जो ये है रेडियस ऑफ द स्फीयर। हालांकि आपको अलग अलग एक्सप्रेशंस मिल जाएंगी, कोई रो यूज करता है, कोई और कुछ भी यूज करता है, लेकिन r दोनों में डिफरेंट है, ये हमें ध्यान रखना है। ये एंगल उसी तरीके से है जैसे हमने फाई बनाया था। यहाँ पर भी हमारे तीन, जब हम एक एलिमेंट लेंगे, पैरेललो पाइप लेंगे किसी सिलिंड्रिकल सरफेस पर, तो उसके लाइन एलिमेंट होने चाहिए। और लाइन एलिमेंट जो उसमें तीन लाइन एलिमेंट होते हैं आपकी बार, वो तीन लाइन एलिमेंट किस किस की हेल्प से डिसाइड होंगे? एक होगा आर की डायरेक्शन में डिसाइड, एक होगा फाई की डायरेक्शन में, और एक होगा जेड की डायरेक्शन में। जेड मतलब ये जो हमारा जेनिथ एक्सिस है, ये जेनिथ है हमारा। जेनिथ का मतलब होता है ए डायरेक्शन ऑपोजिट टू ग्रेविटी फोर्स। तो ग्रेविटी फोर्स ऐसे होती है और जेनिथ की डायरेक्शन ऐसे होती है। ठीक है, ये हमारी रेफरेंस लाइन है, एक्स एक्सिस रेफरेंस लाइन है। तो यहां पर आप देखो, ये देखो अगर आप ध्यान से, तो यहां पर ये देखिए, मैंने आपको कहा कि एक होगा आर की डायरेक्शन में, एक यूनिट वेक्टर यानी एक लाइन एलिमेंट। तो मेरा ये आर है, यहां पर इसके पैरेलल आपने पी से एक लाइन खींची, तो ये बना आपका आर का डायरेक्शन। अब मैं इसे अगर यहां पर देखूं, इस वाले डायग्राम में देखूं, बड़े वाले डायग्राम में, जो मैंने बड़ा डायग्राम ड्रॉ किया है, इस वाले डायग्राम में तुम्हारा ये आर है, ये भी आर है। तो मेरा ये पॉइंट अगर बन रहा है, ये वाला पॉइंट, तो ये मैंने कंसीडर किया है डेल्टा आर, ये डेल्टा आर। अभी मैं यहां से आपको बताऊंगी थोड़ा सा। दूसरी डायरेक्शन होगी हमारी फाई की डायरेक्शन। फाई की डायरेक्शन, फाई की डायरेक्शन, फाई एंगल पहले के जैसा ही बना हुआ है, फाई एंगल ये बना हुआ है, ये हमारा लैटिट्यूड पर ही होता है। तो उसी के अनुसार लैटिट्यूड पर हमने पी पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी, तो ये है फाई की डायरेक्शन। ये जो फाई की डायरेक्शन है, ये यही वाली है, ये देखिए ये लैटिट्यूड बना हुआ है, यहाँ पर ये लैटिट्यूड बना हुआ है। तो वहां से एक एज यहाँ से डिसाइड होगी हमारी, एक एज ये डिसाइड हो चुकी और एक एज ये डिसाइड हो गई। तीसरा है जेड, जेनिथ डायरेक्शन में, ये जेनिथ डायरेक्शन है क्योंकि जेड की ये डायरेक्शन है। तो तीसरी जो भी एज होगी वो ऐसे जानी चाहिए, पैरेलल टू जेड एक्सिस। इस पॉइंट पर अगर मैं देखूं तो जेड एक्सिस के पैरेलल ये लाइन जा रही है, क्योंकि मैंने ये अपना सेंटर पॉइंट माना है। मैंने आपको कहा था कि जो एजेस होते हैं उसके जो कॉर्नर्स होते हैं, सॉरी, उसमें हमें डिसाइड करना होता है हम कौन सा कॉर्नर उठाएं। वो कॉर्नर हमें उठाना होता है जो पूरे पैरेललो पाइप को रिप्रेजेंट करे। तो यहाँ पर हमने ये कॉर्नर उठाया है क्यू। क्यू से तीन पॉइंट बने, तीन एज बनी, एक यहाँ जा रही है आर के डायरेक्शन में, एक यहाँ जा रही है फाई के डायरेक्शन में। फाई ऐसे ही तो मूव कर रहा है, फाई ऐसे जा रहा है, तो ये फाई की डायरेक्शन में, और जेड ऐसे जा रहा है, तो ये है जेड। तो ये तीन लाइन बनी, तीन एलिमेंट बने, ये तीनों। ठीक, यहाँ पे इसको थोड़ा सा देख लेते हैं इस वाले डायग्राम में, क्योंकि मुझे लाइन एलिमेंट चाहिए सिलेंडर के लिए कि क्या लाइन एलिमेंट होंगे। सबसे पहले आपका एक कोई पार्टिकल है इस सिलेंडर की, ये सिलेंडर की तरह से दिखाने की कोशिश की गई है, ये सिलेंडर है। इस सिलेंडर पर कोई पार्टिकल है पी पॉइंट पर। ठीक, तो पी को जैसे हम पहले करते थे, हमने मिलाया स्फीयर में जैसे हमने किया था, और इसको रो नाम दे दिया, आर नाम नहीं देना है। इसका मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर के फुट को मिलाया, और ये नाम हो गया आर, राइट। अब यहां से आपने एक वाई एक्सिस के पैरेलल एक्स एक्सिस पे लाइन डाली, और एक्स एक्सिस के पैरेलल वाई पर डाली, बिल्कुल सेम ऐसे ही जैसे हमने स्फेरिकल में किया था। तो यदि मैं ये कहूं कि इस P पर जाने के लिए मुझे कोऑर्डिनेट्स चाहिए एक्स वाई और जेड, तो मैं कैसे मूव करूंगी? देखिए, ओरिजिन से पहले मैं एक्स की डायरेक्शन में चलूंगी, तो मुझे ये एक्स मिल जाएगा, ये एक्स है। फिर मैं वाई की डायरेक्शन में चलूंगी, ये रहा, फिर मैं वाई की डायरेक्शन में चलूंगी, तो ये मुझे वाई मिल जाएगा। और फिर मैं जेड की डायरेक्शन में चलूंगी, तो मैं पी पॉइंट पर पहुंच जाऊंगा। ये मेरे तीन कोऑर्डिनेट्स हो गए, एक्स वाई और जेड।
जो मुझे सिलिंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स यानी आर, फाई और जेड कह रही हूं अब मैं, तो ये आर, फाई और जेड को रिप्रेजेंट करेंगे पी पॉइंट पर आर, फाई और जेड के फॉर्म में। अब हम लाइन एलिमेंट कैसे लेंगे? जब आप पी पॉइंट को मूव कराएंगे स्फीयर पर, सिलेंडर पर मूव कराएंगे, तो सिलेंडर पर हम इसे मूव कराएंगे उसी सर्किल में, एक सर्किल में जो जस्ट पी पॉइंट से एक फिक्स दूरी लेके आर की, और फिर हम इसको रेडियस की मतलब एक फिक्स दूरी लेके हम इसे मूव कराएंगे। तो जब आप इसे मूव कराओगे तो नेचुरली जो दूसरा पॉइंट होगा, जब ये यहां से यहां पहुंचेगा, यहां से यहां पहुंचने में इसका फुट भी अलग चेंज हो जाएगा। जब फुट चेंज होगा तो ये दोनों की जो एंगुलर डिस्टेंस है वो यदि ये फाई थी तो ये कितनी हो जाएगी? डेल्टा फाई। सेम इनके कॉरस्पॉन्डिंग यहां पर भी फर्क आएगा, क्योंकि इसके पैरेलल ये खींचा है मैंने और इसके पैरेलल ये खींचा है। तो जब ये डेल्टा फाई होगा तो ये वाला एंगल भी डेल्टा फाई होगा। अगर ये डेल्टा फाई है, ये मैंने आर माना है, ये भी आर रहेगा, क्योंकि आर ही है ना, एक ही सर्किल पे लाई कर रहे हैं। तो जैसे ये आर है ये भी आर रहेगा, ये भी आर है ये भी आर है, दोनों के बीच का एंगुलर डिस्टेंस डेल्टा फाई है। तो ये कितना बन गया? आर डेल्टा फाई। और क्योंकि मुझे ये पॉइंट कंसीडर करना है, ये मेरा अगर आर है, मैं इसे भी ले सकती हूँ। अगर मेरा ये आर है, इसको मैंने थोड़ा एक्सटेंड कर दिया और ये दूरी कितनी आ गई? ये आ गई डेल्टा आर। तो इसमें हमारी एक एज, दो एज डिसाइड हो गई हैं। ये वाली जो एज है, एक मिनट, ये जो एज है ये एज डेल्टा आर हो गई है। यहां तक तो ये आर थी, अब यहां तक ये डेल्टा आर होगी। इसी पॉइंट से अब मैं जेड डायरेक्शन की तरफ चलूंगी ऊपर। तो ये जो दूरी है, देखो जब हम इसको ड्रॉ करते हैं, इस डायग्राम को ड्रॉ करते हैं, तो हम क्या करते हैं कि आप ऐसे देखो, हम इसको कैसे ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले हमने पी लिया, यहां पर हमारा पार्टिकुलर पी, इसको ज्वाइन किया, ज्वाइन करने पर इसका प्रोजेक्शन डाला, प्रोजेक्शन को ज्वाइन किया, ये जो एजिमुथ एंगल है ये बन गया फाई, पहले के जैसा। अब हमने ये कहा कि यदि ये पॉइंट मूव कर रहा है और यहां पहुंच गया सपोज यहां पर, तो उसके पहले, मूव कराने के पहले हम क्या करेंगे, जब हमने इसको ज्वाइन किया है ना, तो इसी के पैरेलल एक लाइन यहां पर डाल लेंगे। ये जरूरी नहीं है, ये मैंने बनाया है, आप सिंपली डाल सकते हो यहाँ, ये जहां भी मैच करेगी, ये दोनों आपस में पैरेलल हो गई, राइट। अब मैंने इसको मूव कराया, ये मूव कर गया और क्यू पे पहुंच गया, क्यू को ज्वाइन किया वहीं से, और इधर भी कॉरस्पॉन्डिंगली इसका जब प्रोजेक्शन डलेगा तो वो जहां भी मैच करोगे वो भी आर होगा, ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर और ये भी आर, राइट। ये चार, ये भी आर आ गया आपका, ये भी आर आ गया, ये भी आर आ गया और ये भी आर आ गया। अब तरीका क्या है ड्रॉ करने का, कि इस आर से देखो, ये जो आर था यहां से मैंने एक पहले जेड खींचा था, ये इसको मिलाया ना, जब जब ये यहाँ पे पॉइंट था आपका, इसको फुट से जब मिलाया तो इसको मैंने क्या मान लिया, ये जेड है। अगर ये जेड है तो यहां से भी एक जेड ड्रॉ कर लो, ये जेड और ये जेड, दो जेड ड्रॉ हो गए। अब हम क्या करेंगे, इन पर एक माइनर डिस्प्लेसमेंट लेंगे, इंक्रीमेंट लेंगे। इस जेड का इंक्रीमेंट मैंने लिया डेल्टा जेड। इसी के पैरेलल दो लेने हैं मुझे, दो कैसे लेने हैं, एक मैंने यहां पर ले लिया सेम डेल्टा जेड, और एक और मुझे कहां लेना है, ये जो मूव कर गई थी ना लाइन, क्यू पे पहुंच गई थी, यहां से भी इंक्रीमेंट ले लो, ये डेल्टा जेड। जब आप ये डेल्टा जेड तीन ड्रॉ कर लोगे तो उसके बाद आप यहां से ये लाइनें खींच देंगे, ये दो लाइनें, और ये आपका पहले से पी क्यू जा चुका था, इस पॉइंट से गया हुआ था, तो यहां से दो लाइनें, तो आप आसानी से ये एक पैरेलल पाइप बना सकते हो। ये जो एजेस हैं ये पैरेलल हैं, इसके पैरेलल ये है, इसके पैरेलल ये है, इसके पैरेलल ये है और इसके पैरेलल ये है। ऐसे करके आप इसे स्टेप बाय स्टेप
ड्रॉ करिएगा। अब मेरे पास 3 एजेस आ गई। क्या है वो 3 एजेस? एक है डेल्टा आर, एक है आर डेल्टा फाई, और तीसरी है डेल्टा जेड। दीज आर द 3 एजेस कॉरस्पॉन्डिंग टू अ cylinder, 3 elements on for a parallel pipe lying on a cylinder। तो ये 3 लिख लेते हैं। ये तीनों हमारे पास जो लाइन एलिमेंट्स हैं, for a cylinder, for a parallelopipe on a cylinder are डेल्टा आर या डी आर, पहले में हमने डी लिया है, डी ले लो, डी आर, उसके बाद आर डी थीटा और डी जेड। ये 3 इसके लाइन एलिमेंट है। इसमें एक चीज और देखिए, पिछले शीट पर ही बताते हैं आपको कि हम आसानी से यहाँ पे वो निकाल सकते हैं कि रिलेशंस क्या हैं। ये एक्स है मेरा और ये वाई है, ठीक है। तो यहाँ पर, और ये क्या है, पाई/2 है, ये 90 डिग्री है। तो ये हाइपोटेन्यूज हो गया, ये बेस हो गया। आर कितना यहां से आ गया, एक्स कॉस थीटा, वाई आर कॉस फाई, सॉरी कॉस फाई, वाई कितना आ गया, एक्स, एक्स इज इक्वल टू आर कॉस फाई, वाई इज इक्वल टू आर साइन फाई। ये 2 आ गए ना ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस इन टर्म्स ऑफ आर एंड फाई। और z क्या होता है इसमें, z ही रहता है। ये हमने क्योंकि z माना है, ये z माना है, तो ये आपके 3 ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस आ गए। एक्स वाई जेड की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ आर, फाई और z आ गए, जो यूज हो गया, आपके कई सवालों में यूज होते हैं। खैर, ये अब हमारे लाइन एलिमेंट्स हैं। तो इसके हिसाब से फिर हम उसी तरह से d डिफाइन करेंगे, d ऑफ एफ एक्स यानी डिस्टेंस फंक्शन। दिस इज ds, ds विल बी dr स्क्वायर आर डी थीटा स्क्वायर प्लस डी जेड स्क्वायर, ठीक है। लेकिन होता क्या है, सिलेंडर में भी जो आपका आर है वो तो फिक्स होता है सिलेंडर में। तो आर कैसा है, आर इज इक्वल टू ए फिक्स्ड, रेडियस ऑफ सिलेंडर फिक्स्ड होती है। दिस इंप्लाइज डी आर टू बी 0। तो ये 1 आ गया। डी ऑफ एफ एक्स, कई जगह से एल भी लिखते हैं, इसको पूरे को एल लिख देते हैं, इज इंटीग्रल, आर को मैंने ले लिया ए, डी थीटा स्क्वायर प्लस डी जेड स्क्वायर। अब यहां पर मुझे डिसाइड करना है कि मुझे डी थीटा बाई डी जेड लूं या डी जेड बाई डी थीटा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि इसमें कुछ और वेरिएबल आ ही नहीं रहा है कहीं पे भी। तो मैंने इसको लिखा ए स्क्वायर डी थीटा, चलिए डी थीटा को बाहर निकाल लेते हैं, 1 प्लस डी जेड डी थीटा स्क्वायर। तो यहाँ जब डी थीटा आया है तो दीज लिमिट्स आर फॉर थीटा 1 टू थीटा 2, इट इज ए इंटीग्रल 1 प्लस जेड डॉट स्क्वायर डी थीटा, ठीक है। एफ क्या बना, एफ इज ए फंक्शन ऑफ जेड डॉट ओनली एंड दिस इज रूट 1 प्लस जेड डॉट स्क्वायर। अब EL इक्वेशन ये बनी, क्योंकि ये केवल ये z का फंक्शन ही नहीं, z का फंक्शन नहीं है, केवल z डॉट का फंक्शन है। तो मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ डेल्टा एफ डेल्टा z डॉट इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये हमारी EL फंक्शन, EL इक्वेशन बन जाएगी। यहां पर हम रखेंगे इसको z डॉट मेरा क्या है, एक में जरा सा चेंज कर दूं, मैंने डी थीटा लिखा है, दिस इज डी फाई, क्योंकि हमने फाई मानाएंगे, दिस इज डी फाई। राइट, और यहाँ पर z डॉट क्या है, डी जेड डी फाई, इस इक्वेशन में रख देंगे आप।
2 को, तो आएगा 1/2 रूट 1 प्लस जेड डॉट स्क्वायर और फिर से ट्वाइस जेड डॉट इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यानी कि जेड डॉट स्क्वायर इज ए स्क्वायर 1 प्लस जेड डॉट स्क्वायर। इसको मैं लिख सकती हूँ 1 माइनस ए स्क्वायर जेड डॉट स्क्वायर इज ए स्क्वायर, और जेड डॉट इज ए अपॉन रूट 1 माइनस ए स्क्वायर। जेड डॉट का मतलब क्या है? डी जेड डी फाई। तो ये इसको पूरे को यदि मैं कुछ मान लूँ, सपोज इट इज बी, तो ये हुआ डी जेड इज बी डी फाई, या z is b phi plus c, another constant. Now there is a standard way to write this 1 upon b z plus c upon b, so phi is equal to mz plus कुछ भी ले लो, e ले लो, ये एक आ गया एक्सप्रेशन। Actually these are helix. This is an equation of a हेलिक्स, जिसको यदि हम पैरामीट्रिक फॉर्म में लिखना चाहें तो पैरामीट्रिक फॉर्म में इक्वेशन ऑफ ए हेलिक्स होती है x इज इक्वल टू ए कॉस फाई, y इज इक्वल टू ए साइन फाई एंड z इज इक्वल टू सी फाई। अब इसमें क्या c क्या है? ये व्हाट इज c? a होती है, a इज द रेडियस ऑफ हेलिक्स। अभी मैं आपको एक पिक्चर से दिखाऊंगी ये। a इज द रेडियस ऑफ हेलिक्स, आप ऐसे देखो, एंड 2 पाई c, ये जो c है ना, इसको 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दें तो 2 पाई c इज ए कांस्टेंट गिविंग vertical separation of the loops of helix। आप देखिए, एक पिक्चर दिखाते हैं, वहां से इसको क्लियरली बताएंगे। ये है, ये हेलिक्स है, ये शॉर्टेस्ट पाथ है बिटवीन ए एंड बी, और ये किसके अलोंग होगा? ये हेलिक्स है, दिस इज हेलिक्स। यहाँ जो मैंने आपको बताया है, जो आर है, ये आर है इसका, दिस इज ए, दिस इज द रेडियस। ये जो एक्सिस होता है ना, ये एक्सिस है, ये इस एक्सिस से जो डिस्टेंस ये आ रहा है आर, ये तो है आर इज इक्वल टू ए, रेडियस ऑफ द हेलिक्स कहलाती है ये। और ये जो डिस्टेंस है, दिस इज 2 पाई सी, जो सेपरेशन हो रहा है दोनों का, दो कॉइल्स का, ये कॉइलिंग की तरह से है, इनका जो सेपरेशन है ये है 2 पाई सी। और एक इसका एक बड़ा नेचर में बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है कि जो स्पाइरल होती है ना, जब स्पाइरल एक दूसरे के पीछे दौड़ लगाती हैं तो वो हमेशा हेलिक्स में दौड़ लगाती हैं। वो जो ट्री ट्रंक होता है वो सिलेंडर के जैसा होता है, तो वो जो स्पाइरल होगी वो सीधी नहीं दिखेगी तुम्हें कभी भी चढ़ती हुई, वो हमेशा हेलिक्स में चढ़ती है, तो वो जोडेसिक को फॉलो करती है, यानी कि शॉर्टेस्ट पाथ लेती है वो, जब उसे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाना होता है। ठीक है, अराउंड द सरफेस, अराउंड द कर्व्ड सरफेस की बात हो रही है ये। तो जो जोडेसिक्स है राइट सर्कुलर कोन पर, वो सिलिंड्रिकल स्पाइरल्स होते हैं, या उनको हम हेलिक्स कहते हैं। सो दीज आर 4 applications of, rather you can say this is the one application of calculus of variation, that how to find the geodesics, where we discussed 4 cases. One was for the plane, then was for spherical surface, then it was for conical surface, and then for right circular cylinder. So this is all about geodesics. Thank you so much.